It's a pleasure to have with us Aarti, who's has more than 18 years of experience in advising government and private sector in India and Asia on energy efficient building, sustainable cooling, financing, and market development for low carbon building technologies. And she's been advising on building energy code development, ESCO licensing regulations, and so on. And she advises UNEP, the UNEP India Cooling Program. Tania Saha, who is an urban and regional planning and governance professional, works on integrated development, dealing with many sectoral departments across 9 states in India, and has experience in developing sustainable development processes, policy advisory, the development of toolkit and manuals on spatial planning at different levels and scales. So we have an energy expert, a planner, and we have Arvind, who is also a planner and a researcher, and has been working with various informal sector groups across India for a very long time, and has a lot of in-depth understanding of how different kinds of worker groups deal with urban issues, especially with a keen interest on climate change. And with that, we can get started. We have सुषमा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो एक्सपीरियंस का बताएंगी इसके बारे में, और स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स के मुद्दे के ऊपर अपनी राय देंगी. This particular session is focusing on the idea of street vending zones. It's something that's very much mentioned in the Street Vending Act. It's something that cities and urban local bodies have been talking about. It's a global best practice in the accommodation of street vendors into cities in a planned and sustainable manner, with a lot of potential for participative design and planning. And it's something that I think in India we've been really trying to get off the ground and get a lot more buy-in for at local government level, but also buy-in from all these different actors who there is not an easy agreement about what a street vending zone or what a street vending area should look like, how it should be governed, where it should be located, so that we can do the best by workers who have to earn money as street vendors, as well as for the city, which needs to accommodate them in a fair and non-conflicting way. So we'll start with Arvind presenting us some ideas on how we can imagine these street vending zones, and then we'll go down the panel, and I'll close with my comments, and hopefully we have time, we can open up for a couple of questions. I'd request my panelists to keep their comments short so that we can have at least 2 questions and some engagement from the audience. Thank you. Arvind. Hi. Afternoon Tony. This is, I think, thank you. Good afternoon, everyone. And it's a very important day, because I think I was only thinking that aside from the wonderful report, study, research that we have at this stage, one thing that the finding and the report does is that it kind of, in some ways, rests the question of, if ever someone asks what is the impact on street vendors, कि दिखाओ कि street vendor पे impact क्या है, दिखाओ कि informal workers पे impact क्या है. I think आगे से कोई ये सवाल करेगा तो हमारे पास एक document है, किताब है, एक scientific study है, जिसको हम दिखा के बोल सकते हैं कि देखिए आइंदा से सवाल मत करिए, हमारे पास एक document. Simple. I think that is one of the biggest contributions. It is emerging, the field, over the last year, 2 years, 3 years. We are seeing more and more literature that kind of backs what is exactly happening with informal workers, street vendors, and many, many different people and communities. But I think this document goes a very long way forward in kind of actually pointing out what extent, what scale, what damage, the impact, and that I think is the best thing that the document has done. So congratulations to the team, the street vendors, and everyone who's done that. तो just क्योंकि जो चीज़ हुई है उसको दोहराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सोचा था उससे शुरू करूँ. Second point मुझे लग रहा है कि हम कि दिन का मकसद जो शालिनी जी ने बोला था, मकसद ये है कि अच्छा रिलीज तो हम डॉक्यूमेंट का करेंगे. I'll stick to Hindi and English mix, yes, because we have sathis and street vendors here.
तो सबके साथ बात आगे बढ़ेगी उसके लिए। तो इसमें एक और हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था, किताब का रिलीज करते रहेंगे, बहुत बढ़िया, हम सब एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सरकार, अलग अलग लोग हैं, तो हमने बहुत सारी रिपोर्ट और किताब बहुत रिलीज की हैं, वो तो करते रहेंगे। लेकिन आज का मकसद ये है कि डॉक्यूमेंट आया, इसके आगे इसको किधर बढ़ाएं, कैसे आगे लेके जाएं, वो बहुत जरूरी चीज है। तो हाउ डू वी टेक इट फ्रॉम हियर, दैट वाज द प्राइमरी क्वेश्चन, एंड आई थिंक the next two sessions and including this is seeking is encouraging us to go in that direction. तो उस स्टडी में अगर निकल के आ रहा है कि इम्पैक्ट है, तो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें आप सबका इनपुट चाहिए, where we need everyone's ideas, suggestions, is that how do we act on it and take it forward. And one of the ways of acting, like Mukta mentioned, could be that we look at Street Vendors Act, which is considered to be a very good progressive document. We look at how do we use provisions in it and then articulate what a climate resilient street vending zone could be. क्योंकि अभी articulation चल रहा है कि act का implementation होना चाहिए, street vending zone बनने चाहिए, so on and so forth. लेकिन climate resilient क्योंकि आप बना ही रहे हैं, तो उसमें कुछ और factors और parameters आप सोचें उसको, और ये क्लाइमेट हीट के पर्सपेक्टिव को एड्रेस करने की हम स्पेस को इसमें ढूंढ रहे हैं। इसमें दो छोटे और इंस्टेंसेस जो साल डेढ़ साल में सभी साथियों के साथ हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, एज वी गो एज जन पहल, आई मीन एज ऑल ऑफ अस हियर, जिसमें वी वर ऑल्सो डैबलिंग विद द आइडिया दैट लुक, वी हैव अ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट विच इज डेल्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, वी हैव हीट विच इज डेल्ट बाय और मैनेज्ड बाय NDMA. Both sometimes talk. I'm having an open conversation, so I hope this space allows that to happen. So I'm saying it in full seriousness, but also in jest. So both have conversations with each other, but we feel that they don't have long conversations and sharing with each other. I think which is something that we would also want to do more. But we see that there are these big ministries, silos which need to talk to each other if we are to address something as complicated or as in between as a street vendor facing heat. So this then the climate resilient street vending zone is also from our experience that we will have to create such spaces where different ministries, different officers, different departments, different schemes need to be brought together. So this is an attempt at looking at the Street Vendors Act also. It's also an attempt at how do we fit in street vendors issues into heat action plans, but it is also an attempt to look at how can we push, let's say, something like a PM Swanidhi, which is already there for street vendors, financial inclusion, so on and so forth, but how do we tweak that and make it more relevant to what street vendors are facing and what the report documents. So this is from our experience of last 2 years, trying to push these aspects and points. उस पर्सपेक्टिव से हम इस डॉक्यूमेंट को देखें, और मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट अभी फाइनल नहीं है, तो हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने लेवल पे देखें, हम जहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर आए हैं, स्ट्रीट वेंडर साथी भी आए हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर खाना बनाने वाले स्ट्रीट वेंडर अलग हैं, फ्रूट बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर अलग हैं, तो वो भी इस हर पर्सपेक्टिव से इसको देखें और इसमें सुझाव दें। और ये सिर्फ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल है, इसको हम कैसे ठोस कर सकते हैं और फाइनल कर सकते हैं, जिसके बाद हम NDMA को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए एक यहाँ पर ऐसा डॉक्यूमेंट आया है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, वी कैन रीच आउट। और थैंक्स फॉर गिविंग वंडरफुल आइडियाज दीपेंद्र जी, दैट I mean, we can reach out to NIUA and say that, look, there is a framework here, why don't you try this as a pilot, so on and so forth. So please look at it from where you are, from the organizations that you are here for, or representing rather, and अलग-अलग position पे जो आप आए हैं तो उसको देखें, और open discussion है, बाकी तो हम input निकालने में we have Mukta here, so I'm sure she will do that. Great. तो document सबने देख लिया, ये आपके पास में है, माफ़ी चाहते हैं कि अंग्रेजी में है, आपके फाइल फोल्डर में होगा, लेकिन इसका आगे ट्रांसलेशन अलग अलग रूप में हम पहुंचा देंगे, क्योंकि आजकल
ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है AI की बदौलत, तो वो हम आगे डेफिनेटली कर देंगे, ठीक है। तो अभी पूरा मैं डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ूंगा, आई विल एसेंशियली रन थ्रू व्हाट द प्रिंसिपल्स आर। तो पहला इसमें पैरा में और पहले स्पेसेस में हम यही बोल रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स आर की टू सिटीज़, कि स्ट्रीट वेंडर और इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है हमारे शहरों की बुनियाद है। वो शहरों में काम करते हैं, शहरों में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनके बिना शहर और शहर का चलना और हमारे अर्थव्यवस्था का चलना नामुमकिन है, और शहर की बुनियाद है, उससे हम हमारे इस डॉक्यूमेंट को शुरू कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट बना है वो किसी एक व्यक्ति, दो लोग साथ में बैठे और AI में डाला वैसा नहीं है। ये बहुत सारे साथी हैं जो वर्कर्स हैं, जन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जन पहल, वीगो, सभी साथी ने बहुत साल के सोच को, समझ को साथ में लाया और ये डॉक्यूमेंट आपके सामने बनाया। तो ये हमारी साझी डॉक्यूमेंट होगी, इसको आगे सुधारने में भी आपकी उतनी जिम्मेदारी, तो उसमें प्लीज़ आप ऐड करें। थर्ड पैराग्राफ ये बोल रहा है कि जो हमने पहले बोला कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंदर ऐसे प्रोविज़न हैं, क्लॉज हैं, उस स्पेसिफिक प्रोविजंस और क्लॉज को ही हम यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर ही इसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाद में ये ना हो कि भाई आप ये कहाँ से आया है, इसका बेसिस क्या है, इसका लीगल बेसिस क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें अगर और सुझाव साथियों के हों तो उसमें वो ऐड करें। पर हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स के वेलफेयर के लिए प्रोविजंस हैं, स्ट्रीट वेंडिंग जोन के लिए हैं, तो उसी के अंदर इसको हम डिफाइन कर रहे हैं और एलाबरेट कर रहे हैं। फोर्थ पैराग्राफ ये बोल रहा है कि देखिए, जो एक्चुअली यहाँ पे भारती जी ने बड़े अच्छे से बोला कि हर चीज़ का समाधान, जैसे कि हमारे शहरों का समाधान फ्लाईओवर बनाना नहीं है, तो स्ट्रीट वेंडर अगर गर्मी से परेशान हो रहे हैं तो सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल सोल्यूशन समाधान नहीं है, उसमें एक सॉफ्ट सोल्यूशन रहेगा, उसमें इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन रहेगा। वो क्या हो सकता है वो वैसे इसको सोचना चाहिए, वरना हम फ्लाईओवर बना के अब तक अपने शहरों के मसलों को सॉल्व कर दिए होते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन सिर्फ सोल्यूशन नहीं रहेगा, इसमें लोग क्या करेंगे, समुदाय क्या करेंगे और सॉफ्ट सोल्यूशंस क्या होंगे, उस पर बात की गई है। पांचवा पैरा नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएं, ये कि स्ट्रीट वेंडर जोन जो हैं या क्लाइमेट रेजिलिएंट वेंडिंग जोन जो हैं वो अकेले अलग से हमारे शहर में नहीं बैठे रहेंगे, वो पेडेस्ट्रियन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अलग अलग जो शहर को बनाते हैं उन सभी चीज़ों के साथ जुड़े हुए रहेंगे। इंडिपेंडेंट अलग एक मॉडल की तरह इनको हमने अलग बना दिया, वैसा हम नहीं देख रहे हैं, और उसको हम यहाँ पे क्लियर करके अपने सामने रख रहे हैं। सेकेंड लास्ट पैरा में ये लिखा है, मतलब सेकेंड पैरा सेकेंड पेज में हमने ये लिखा है कि अगर हिंदी दिल्ली, मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं खुश होता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली वाली हिंदी में बात करने का मौका मिलता है। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ, सारे सॉल्यूशंस हमारे देश में अगर इम्प्लीमेंट होने हैं तो सस्ता सुंदर टिकाऊ पे फोकस, सस्ता सुंदर सिर्फ नहीं, लेकिन उसको TVC के ज़रिए इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि गवर्नेंस ढांचा वो है TVC, मतलब टाउन वेंडिंग कमेटी, हम सब उसको जानते हैं। तो उसका एसेंस वही है कि किफ़ायती चीज़ जो सबसे जल्दी काम करे, कारगर, लोगों के लिए फ़ायदेमंद, लेकिन TVC के साथ, स्ट्रीट वेंडर्स की भागीदारी के साथ। लास्ट पैराग्राफ सेकेंड पेज पे प्रिंसिपल से पहले कि ये अलग अलग स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, ये मोबाइल स्ट्रीट वेंडर के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर्स के अंदर भी, हमारे अंदर भी बातचीत ये चल रही है कि स्टैटिक वेंडर्स के लिए और स्टेशनरी वेंडर्स के लिए हम ज़्यादा सोच देते हैं, बाकी सब स्ट्रीट वेंडर्स को मिस कर जाते हैं। तो उस चीज़ को भी प्लीज़ दिमाग में रखते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स थे हमारे प्रिंसिपल से पहले। तो अब जल्दी से मैं प्रिंसिपल्स पे आता हूँ एंड रन थ्रू करते हैं ताकि हम इस चीज़ को और जानने की कोशिश करें। नेचुरल मार्केट और एग्जिस्टिंग मार्केट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हूँ। इसमें एक और चीज़ मैं पैराग्राफ में है जो हम क्लियरली बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, स्ट्रीट वेंडर एक्ट बोलता है कि स्ट्रीट वेंडर्स को एक लोकेशन से 20 मीटर भी हटने के लिए बोलते हैं तो बहुत परेशानी होती है स्ट्रीट वेंडर्स को, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो आप नेचुरल मार्केट्स को ही फोकस करके स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बनाएं और क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स बनाएं, और उसका सिद्धांत स्ट्रीट वेंडर एक्ट से ही आता है।
सेकेंड पॉइंट प्रिंसिपल्स में स्ट्रेंथनिंग नेचुरल मार्केट्स फॉर क्लाइमेट वायबिलिटी। नेचुरल मार्केट हमने आपके सामने बोला कि बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर जो स्ट्रीट वेंडर्स वाले इशू से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स आज यहाँ बैठे कल वहाँ बैठे रैंडमली नहीं बैठते हैं। स्ट्रीट वेंडिंग बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं जो जिनका मतलब नेचुरल मार्केट, हेरिटेज मार्केट्स की भी कॉन्सेप्ट है। ऐसे भी मार्केट्स हैं हमारे दिल्ली में जो 200 साल से चल रहे हैं, 300 साल से चल रहे हैं, बट वो अभी भी रिकग्नाइज नहीं हुए हैं ऑन पेपर। उसके रिपरकशंस अलग हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि नेचुरल मार्केट्स को ही रिकग्नाइज करें, उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट वेंडिंग जोन में कन्वर्ट करने में आसानी होगी और उसका बेसिस वो होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस थ्रू टाउन वेंडिंग कमिटीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो भी ये वेंडिंग जोन बने, बेटर है कि टाउन वेंडिंग कमेटी से बात हो, वहाँ पर डिस्कशन हो, वहाँ से एक अप्रूवल प्रोसेस और रिकग्निशन प्रोसेस आए, क्योंकि वो एक्ट उसको मैंडेट करता है। लाइवलीहुड एनहांसिंग एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर जस्ट क्योंकि धर्मेंद्र भाई भी और इवन आई थिंक दीपेंद्र जी आप भी बात कर रहे थे कि प्लानिंग के अंदर कैसे इसको फिट करें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1980s का बना हुआ हमारा दिल्ली मास्टर प्लान है, वो अभी भी उसमें ऐसे नॉर्म्स हैं जो 1980s के हैं, उसको अमेंड करने का टाइम जा चुका है। तो उसको हम शायद ऐसे प्रोसेस से वो चीज़ें अमेंड हो जाएं। तो आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें 2014 के बाद अभी 2026 है, नए नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी हम जल्दी डिवाइस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रमोशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि स्ट्रीट वेंडर्स अलग अलग हम ज़बान से बोलते हैं, इसको भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स ज़ीरो कार्बन कई लोग बोलते हैं, लेस कार्बन कई लोग बोलते हैं, पर पॉइंट ये कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर बिना ईंधन के इस्तेमाल किए, बहुत कम ईंधन का इस्तेमाल किए, बहुत बड़े तबके को खाना खिला रहा है, कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है सस्ते में, आई थिंक वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको रिकग्नाइज करें। और शायद पहला पॉइंट यही होना चाहिए, और उसके बुनियाद पे उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस रिकग्निशन के साथ उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे ही हमारा ये जो वेंडिंग जोन की शुरुआत होनी चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक कम्युनिटीज़, स्पेशल कंसिडरेशन टू विमेन वेंडर्स, हमने यहाँ पे बात रख दी। मैं बस एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा था कि मिसाल के तौर पर इतना बढ़िया हमारा रिपोर्ट बना, रिपोर्ट के अंदर एक पॉइंट है कि अभी भी हमारे दिल्ली में ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं जो दिन में 200 रुपये देते हैं पानी के, दिन में 200 रुपये, महीने में 6,000 रुपये। यहाँ पे मेरे सब साथी जरा ईमानदारी से हाथ उठा के बताना कि घर पे 6,000 रुपये पानी का बिल कौन देता है? ठीक है, नहीं देते हैं। यहाँ पे बहुत लोग 0 रुपये देते हैं, है ना, क्योंकि मैं 0 रुपये देता था। तो ये क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, यार आप तो उनको मतलब ये तो इसका मुझे नया टर्मिनोलॉजी निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास नहीं है, बट दिस इज एक्सप्लॉइटिंग द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड एंड उस एक्सप्लॉइटेशन के अंदर उनको और परेशान करने के लिए आपने नई नई चीज़ें लगा दी हैं। दीज आर स्मॉल थिंग्स, कैन बी फिक्स्ड। How do we do it? Let's discuss into that. Integrating climate resilient vending zones into city planning, ये discussion हो चुका है। We have many planners here, तो मैं कर सकते हैं, होना चाहिए, पर इसको डिस्कस हम करें। जो पॉइंट आपने वोरा जी बात रखी, 3rd पेज में फर्स्ट पैरा कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी प्लानिंग सब आए। हीट एक्शन प्लान्स बहुत अच्छे फ्रेमवर्क हैं, उसके अंदर इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए अब गाइडलाइन है, पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गाइडलाइन नहीं है। लास्ट ईयर का मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओपन डिस्कशन है उसके लिए। तो हम पीएम स्वानिधि के पास भी गए, हमने बोला देखिए गाइडलाइंस हम निकाल सकते हैं, पर उन्होंने बोला कि देखिए एनडीएमए इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू इट। एनडीएमए के पास गए, थोड़ा वक्त लगा, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, बट इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए रिकग्निशन आया, बहुत अच्छा रिकग्निशन आया। वी अप्रिशिएट एनडीएमए टू डू, मतलब फॉर डूइंग दैट। पर इसमें ये कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं आया। तो अभी भी आप स्टेट लेवल पे हीट एक्शन प्लान्स का एनालिसिस करेंगे ना, कंट्रोल एफ सर्च स्ट्रीट वेंडर्स, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर वो होंगे ही नहीं। तो हमारे पॉलिसी में ये है कि अगर नाम नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा। तो आई थिंक वो गैप्स हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट फ्रेमवर्क अच्छा है, गाइडलाइंस अच्छे हैं, इसको कैसे और इम्प्रूव करें।
पेडेस्ट्रियन फर्स्ट लो कार्बन मोबिलिटी के ऊपर बात हमने ऑलरेडी कर दी है। थर्ड पैरा लो कॉस्ट फ्लेक्सिबल एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स, इसका आपको बोला कि सस्ता सुंदर टिकाऊ लेकिन मॉड्यूलर, समथिंग दैट कैन बी इजीली स्केल्ड रेप्लिकेटेड। इक्विटी सेंटर्ड एंड इंक्लूसिव डिज़ाइन, सारे स्ट्रीट वेंडर सेम नहीं हैं, महिलाओं का इम्पैक्ट बहुत अलग है। सारे फिगर्स नंबर्स आपके पास हैं जितने अभी मौजूद हैं, उसको दिमाग में रखते हुए हमें आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। महिलाओं के अलावा और मार्जिनल वेंडर्स हैं जैसे कि मोबाइल वेंडर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उस पर वो उसके पर्सपेक्टिव से इंक्लूजन का होना चाहिए। वेंडर लेड मैनेजमेंट, कॉस्ट शेयरिंग, कलेक्टिव शेयर टू वेंडिंग जोन्स। कोई भी ये वेंडिंग जोन, हम सब स्ट्रीट वेंडर लोग भी जानते हैं कि अगर कोई फैसिलिटी बने उसका मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रीट वेंडर्स काफ़ी अच्छे से संभाल सकते हैं। अभी भी आप स्ट्रीट वेंडर से पूछेंगे कि आपके दुकान के आसपास का कौन साफ सफाई करता है, करती है, तो स्वच्छ भारत की टीम के पहुंचने से पहले स्ट्रीट वेंडर अपना करके रखते हैं। आई थिंक ये हमको पता होना चाहिए। हम लोग हैं जो चाय पी के बाहर फेंक के जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी दुकान नहीं चलेगी। पॉइंट ये। तो आई थिंक वो चीज़ हम समझें एंड वेंडर्स वुड बी वेरी हैप्पी टू पिक अप द कॉस्ट, बिकॉज जो 6,000 रुपये दे रहे हैं उनको 1,000 रुपये देने में कोई मतलब, मैं हवे में बात कर रहा हूँ, पर कंट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस में स्ट्रीट वेंडर्स को दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियल रेजिलियंस पे बात हुई है, हमारे पास ऑलरेडी स्कीम्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, उसके अंदर कैसे हम कॉम्पनसेशंस की बात करें। इंश्योरेंस पे एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ, लेकिन हम जैसे लोग हैं जो शायद इंश्योरेंस को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, तो उस पर भी हमको डिबेट होना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल रेजिलियंस और इंक्लूजन पे और बात हो वेंडर्स के लिए। प्रमोशन ऑफ लोकल क्लाइमेट अडेप्टिव इकोनॉमीज, इसकी बात बोली कि खाना भी मतलब सरल शब्दों में कि कहाँ से खाना आ रहा है, अच्छा पौष्टिक खाना है कि नहीं है, और लोकल इकोनॉमी को कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे सोलर एनर्जी की स्कीम्स हैं, उसको भी, उसके अंदर भी इसको डबटेल करें ताकि शायद फंडिंग एक्सेस, वो सब चीज़ें बहुत ईजिली हो। ये सब प्रिंसिपल मिला के हम बोल सकते हैं कि कुछ सिद्धांत निकले हैं। जैसा बोला कि हमने काफ़ी मिस भी किया होगा, तो इस डिस्कशन में वो चीज़ निकल के आए और एक ठोस कदम निकल के आए कि अच्छा हम वेंडिंग जोन्स को और कैसे अच्छे क्लाइमेट रेजिलिएंट वेंडिंग जोन्स के रूप में देख सकते हैं। तो सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया, बट या उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, अब तो टाइम ले लिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉरी उसके लिए। थैंक यू। नहीं, आई थिंक बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं वेंडिंग जोन के बारे में जो हमें पहले अपनी सोच ब्रॉड करनी होगी और फिर शायद हम फोकस एरियाज उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो प्लानिंग का मुद्दा है, सबसे पहले हम उस पर जाते हैं। मैं सबको याद दिलाना चाहूँगी कि जब हम ये क्लाइमेट फ्रेंडली फ्रेमवर्क्स बनाते हैं तब हम सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए नहीं बल्कि सारे शहरों के बारे में सोच रहे हैं। और अगर हम दिल्ली और मुंबई में देख रहे हैं कि जो आम जनता है वो एक स्ट्रीट वेंडर पे निर्भर है अपने दोपहर का खाना खाने के लिए या घर के रास्ते में अपनी छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे शहर में स्ट्रीट वेंडर की कितनी ज़्यादा भूमिका होगी, जहाँ पे फॉर्मल मार्केट्स जो हैं वो शायद अफोर्डेबल ना हो और शायद सब जगह बने हुए ना हो। तो अगर हम तान्या आपके पास पहले आए, आई वांटेड टू देयर हैज़ बीन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग दैट प्लानिंग जो है टॉप डाउन फ्रेमवर्क होता है। प्लानिंग एक मास्टर प्लान लेवल पे शुरू होता है और फिर मास्टर प्लान से हम जोन और लोकल और स्ट्रीट तक आते आते, जहाँ पे हमारे स्ट्रीट वेंडर साथी बैठते हैं और अपने रोजगार कमाते हैं, वहाँ तक आते आते हमारा प्लानिंग फ्रेमवर्क उतना मजबूत नहीं रहता है। और दूसरा, स्ट्रीट वेंडर्स वेंडिंग जोन बनाने के लिए एक लैंड का जो मुद्दा है कि ये कहाँ बनेंगे, जो ऑलरेडी सड़क है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है एग्जिस्टिंग पेडेस्ट्रियंस के साथ या उन पेवमेंट्स पे ऑलरेडी प्रेशर है कि वहाँ पे मोटरसाइकिल चढ़े जा रही है ट्रैफिक के टाइम पे, वहाँ पे लोग ही नहीं चल पा रहे हैं। तो इस तरीके के हमें जो प्लानर्स के साथ हमारे कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो एक वेंडिंग को इंक्लूसिव बनाने में इस तरीके के हमें पुशबैक्स मिलते हैं। लेकिन हम ये भी रिकग्नाइज करते हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक लीगली प्रोटेक्टेड प्रोफेशन, एक कैटेगरी है जिसके बारे में हमारा एक लॉ है, हमें बताता है कि हमें वो रिकग्नाइज करना है। तो अगर हम वेंडिंग जोन को एक यूएलबी लेवल पे इनकॉर्पोरेट करने की सोचें और उसके आगे फिर उसको क्लाइमेट फ्रेंडली भी बनाने की सोचें, तो हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं?
I would say it starts from planning. So planners are designers, and also whatever is available, they play around with that for creative solution. But when the task of planning comes, it comes with a budget, it comes with a timeline, and it comes with a desk space. Is the system integrated until that lower level you take information from? So we cannot blame planners, like not because I am a planner, but I mean I have shifted to governance and other things I have explored, where planning can only happen when governance is strict, when monitoring and evaluation is strict, when retrofitting of the process is strict. If these are not in place, planning only stays in paper, like a colored patches of land use. So that's where we need to start. But when it comes to integrated planning until that level, I would say, because planners also fantasize the land use plan. That's how they have been taught in the schools. So now it has multiple spiderweb effect. In the schools also, we need to integrate that. So transport is fantasized. When it comes to city planning, the transportation corridors are the first priorities. Then demography is fantasized. Okay, population count karo, what is that? But when it goes to that level, economy is not that integrated. It stays until that analysis level. Lot of graphs and charts are done. When it comes to implementation, either the energies are gone to creatively think, and the major issue is stakeholder integration. Because until analysis level we do stakeholder integration, but not with the lens of implementation. The real conflict comes when in the same given space you have to adjust the street vending and they are blocking the transport channels, vehicles has to go, so they are evicted. Who gets bothered by the livelihood of the street vendors? Like if the street vendors are not there, then next order economic class who feeds from the food which they provide, they are getting affected. And what is it costing to the larger indirect circle? That has to be not only cost accounted, but also how is it affecting the larger stakeholders? Because larger stakeholders only see what is in it for me. Yeah. So that has to be proven, because I mean I'll just give a very funny story maybe. I find like governance is also like parenting. So the child who demands more either gets more, depends on the parent's psychology, or the child who is very evident to prove his worth gets more. So we have to find out a way which stakeholder can be tapped in what. Then is convergence of programs. Planning comes much later. Convergence of programs, like if I talk about this, NULM. Also, if SDG has goals, not leaving anyone behind, does it mean anything? Can we not leave anyone behind? How much are we catering to? Accounting for those figures are important, how we are catering to, and having a holistic thing is not there. So if growth hub is being worked, so we are focusing on economic generators. But where is the economic generators from this section in the whole picture? Because we don't have an integrated ministry or integrated disciplinary body who has knowledge of all sectors. So if we are having a workshop here from informal sector, it's only us. It's rather the other ministries also should have been there where it pinches them. Why should we take care of them? So that is there. If a piece of land is there, technical creativity is not an issue for Indians to create. So we do have, sir, that's a home ministry here. So let's not say that the other ministries are not there. And I'm asking that question because I think one way we can say is कि heat का जो मुद्दा है कि गर्मी है और गर्मी बढ़ने की वजह से income पे जो सर्वे ने हमें सारा डेटा बताया. So I completely agree that planning is a reactive process. But अब ये urgency आ गई है हमारे पास कि ये एक urgent situation है where livelihood is being affected, where health is being affected, where it is considered a crisis or it is officially now a disaster. Just a quick one sentence answer from you. Will that sort of sense of urgency change something in how planners are educated or how they think, or will that really give an impetus to bringing together the frameworks to bear upon this from a planning perspective? Just a quick answer. It can give a stopgap.
Okay. That's what I can say truly and honestly. Fine. Fair But it enough. is not sustainable process until we get the whole process. Fair enough. So, thank you so much. Aarti, इसमें एक मुद्दा था of the contribution and the energy use of the street vendor themselves, या जो informal workers हैं, उनका footprint, carbon footprint इतना कम होता है, and that in that sense they have a lot of potential for they have a high impact and a low sort of carbon footprint, A, and secondly वो localized systems वगैरह create करने में उनका बहुत potential है. So since you are coming in from that sort of systems and energy sort of thinking, can we really use that kind of logic to push something like a climate sensitive infrastructure like a street vending zone? I mean, we can think about how a street vending zone can be designed and whatever, वो एक अलग चीज़ है. But can this kind of logic, has this been done in any other sector where these kind of logics of contribution, low carbon footprint, sort of the math of what is the impact versus what is the sort of contribution is used to sort of justify interventions or target certain kind of interventions to specific groups, whether they are livelihood groups or certain kinds of citizens or certain kinds of sort of people who occupy certain kind of spaces in cities? थैंक यू मुक्ता. इसको सॉरी टू से बट मिटिगेशन का मुद्दा नहीं रखना चाहिए. उनका फुटप्रिंट क्योंकि इतना कम है, ये सोली अडेप्टेशन बेसिस पे देखना चाहिए. ये यूनिट में भी हम यही कर रहे हैं. मेरा इनिशियल वो मिटिगेशन की तरफ था, पर जब हम लो इनकम कम्युनिटीज़ की तरफ देखते हैं, चाहे उनका घर हो चाहे उनका प्लेस ऑफ वर्क हो, ये अडेप्टेशन है. और अगले 10-15 साल तक तो डेफिनेटली ये सिर्फ अडेप्टेशन रहेगा, क्योंकि अभी कौन एसी और पंखा खरीद पा रहा है इनमें से. हमने रिसेंटली इनफैक्ट एनआईओ के साथ सर्वे किया था, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, उनका फुटप्रिंट नहीं है. एंड तो उसको एक अडेप्टेशन के तौर पे देखना चाहिए. अडेप्टेशन में जो उन्हीं ने बात कही है कि वो लो कॉस्ट तो होगा, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट के पास इतनी इन्वेस्टमेंट पावर है, ना इंडिविजुअल के पास, एक स्ट्रीट वेंडर के पास इतना है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सकता है. सॉल्यूशंस बहुत सिंपल हैं, सब डिस्कस हो रखे होंगे, ज़्यादा नहीं बताऊंगी. शेडिंग, अच्छा वेंटिलेशन दे दो उनको, एंड ग्रीन, एंड कुछ मार्केट्स आ रहे हैं जो ये सब कर रहे हैं. प्रॉब्लम आती है, एंड फॉर एन एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री है, पर फिर भी मैं एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैंने इसमें कोशिश करी. ऑस्ट्रेलिया ने किया था कि उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी पब्लिकली शेडेड स्पेसेस इंक्लूडिंग इनफॉर्मल मार्केट्स और फॉर्मल मार्केट्स. जो उन्होंने अच्छा किया, और जो हमारे यहाँ मुझे लगता है नॉलेज गैप है कि करना क्या है, उसको कैसे करना है, उसका कॉस्ट कितना आएगा, वही नहीं पता अभी तो हमें. अडेप्टेशन सॉल्यूशन का आप उसमें एनर्जी ले आइए, रीन्यूएबल एनर्जी ले आइए, ताकि आपका अगर कुछ कॉस्ट या ऑफसेट हो जाए, वो सब आप ला सकते हो. बट वो सबसे पहले हमें वो टेम्पलेट्स बनाने होंगे मुक्ता, कि करना क्या है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, दिल्ली के मार्केट में वर्सेस चेन्नई के स्ट्रीट वेंडिंग जोन में वर्सेस लुधियाना वर्सेस भिलाई, जो भी है वो एक देखना पड़ेगा कॉस्ट क्या है. और यूएलबीज अनफॉर्चुनेटली ओवरलोडेड हैं, और जितना मुझे पता जाएगा उनके ऊपर ही, इन पार्टनरशिप विद टीवीसी, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, आपके जो भी हैं सब पार्टनर्स आएंगे, बट कस्टोडियन तो उन्हीं वही होंगे. उन्हीं को, उनको ये बात कैसे समझ में आए वो करना है. उसके लिए सॉरी टू यूज़ दिस टर्म, बट बिकॉज आई डोंट हैव एनी राइट नाउ, इस पायलटिंग करना होगा कि इसको एज एन अडेप्टेशन हम कैसे देखें, और इसकी फंडिंग एंड देन एज अडेप्टेशन कैसे आए. मिटिगेशन को करते ही हमारा टास्क थोड़ा और भी टफ हो जाएगा. अगर हम इसको मिटिगेशन के, जिनको हम बेनिफिट करना चाहते हैं वो भी इसके अगेंस्ट हो जाएंगे कि जब हम कुछ फुटप्रिंट हमारा है ही नहीं तो हम इसको मिटिगेशन के तौर पे क्यों देखें. सो दैट टेम्पलेट नीडेड कि क्या करना है, क्या कॉस्टिंग है, गाइडलाइंस बननी चाहिए उसके लिए, प्रैक्टिकल कि इतना खर्चा है, दीज आर योर सोल्यूशंस, स्टैंडर्ड ये. और उसके बाद यूएलबीज़ को कैसे वो कर सकते हैं, उनके पास कितना बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए ये करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है. आई होप द आंसर वाज देयर. No, absolutely. Thank you so much. सुषमा जी, यहाँ पे एक टीवीसी ऑलरेडी रोल हम देख रहे हैं. एक तो रोल जो पार्टिसिपेटरी जो डिज़ाइन होना चाहिए, या अगर ऐसा पायलट बने तो उसमें टीवीसी का एक नज़रिया आना चाहिए. पर मैं आपको क्वेश्चन गवर्नेंस के बारे में पूछना चाहती थी. जैसे इन गाइडलाइंस में ये जो हम डॉक्यूमेंट बना है, इसमें भी अरविंद जी ने भी बोला कि
इस जगह को मेंटेन करने का, अगर वेंडिंग जोन है या एक डेजिग्नेटेड वेंडिंग एरिया है तो वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ का देख रेख किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, उसमें दोनों की भागीदारी है, डीवीसी की भागीदारी है, वेंडर्स की भागीदारी है, सरकार की भागीदारी है। तो इसमें आपको किस तरीके से हम इन गाइडलाइंस को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि ये गर्मी और इस तरीके के मुद्दों को भी हम आगे बढ़ा पाए, हम इनके बारे में भी बात कर पाए अभी जब आपके जो अभी तक अनुभव रहा है उससे। हाँ जी, सभी को नमस्ते। जैसे कि हम वेंडर की बात करते हैं, वेंडर्स के लिए हमने अभी सर्वे किया था हाल फिलहाल में ग्राउंड लेवल पे। तो मैंने जहाँ देखा, वैसे तो मैं सालों से देख रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ग्राउंड पे ही काम करती हूँ, सालों से देख रही हूँ जो स्ट्रीट वेंडर फेस करते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो और हम बरसात, हर मौसम की बात करें, लेकिन गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है स्ट्रीट वेंडर को लेके, क्योंकि पहली बात तो उनके लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जो वहाँ छाया हो या पेड़ हो, कहीं भी वो लोग लगा सकते हैं जहाँ उनका सालों से काम चल रहा है। तो कभी भी जैसे सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर के लिए ऐसे जोन कहाँ है जहाँ ठंडक हो, थोड़ा ठंड मिले, मतलब गर्मी में उनको आराम मिल सके, वो काम कर सकें। सबसे पहले तो वो जगह हमें चिन्हित करनी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जैसे पानी ये लोग वो बेचते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा, तो उनको बढ़ावा देना चाहिए बेचने के लिए। आए दिन जैसे हटा देते हैं और आते हैं, जैसे हमने छाता लगाया, सपोज करो मैं स्ट्रीट वेंडर हूँ, मैं छाता लगा के बैठी क्योंकि गर्मी बहुत है, प्यास भी लग रही है और गर्मी भी है, लेकिन वहां पे ना तो पीने का पानी है और ना ही कोई हमें छाता लगाने देगा। वो आएंगे, एमसीडी आएगी और आके छाता उठा के ले जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम सरकार से कहते हैं कि इस तरह के जो एविक्शन है गर्मी में तो इवन नहीं होने चाहिए, जिससे कि स्ट्रीट वेंडर को काम करने में सहूलियत हो या आराम मिले उसको। वो सुबह जैसे कई स्ट्रीट वेंडर हैं कि सुबह 5 बजे से 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे से तैयारी करते हैं, फिर वो वेंडिंग करने जाते हैं और वहाँ पे कुछ भी उनको, जैसे महिलाओं की मैं बात करूँ तो वहाँ टॉयलेट नहीं है, कहीं भी टॉयलेट नहीं है, मार्केट में पानी नहीं है। जो अभी अरविंद जी ने बताया कि 200 रुपये खर्च करते हैं, तो आप ये सोचिए कि जब वो 200 रुपये खर्च करके पानी पी रहे हैं और उसके बाद जो महिलाएं उनको टॉयलेट जाने में भी सोचना पड़ता है कि पानी पिए या ना पिए, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस तरह की परेशानी ना हो, एक वेंडिंग जोन में, जो वेंडिंग जोन होता है उसमें हर तरह की सहूलियत होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब गर्मी में बहुत गर्मी पड़ रही हो, कई बार मतलब वेंडर को चक्कर जैसे आ जाए या वो गिर जाए, बिजली आ जाए, तो उसके लिए भी आसपास ना एक इस तरह के, जैसे मोहल्ला क्लिनिक थे या अभी भी हैं, आरोग्य धाम उनका नाम रख दिया है, तो उस तरह के भी होने चाहिए जिससे वो जाके वहाँ आराम कर सके और उनको फर्स्ट एड तो मिले कम से कम, इस तरह का। थैंक यू सुषमा जी। जिससे पहले कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ रही हैं, जैसे हेल्थ की जो बात की है कि हेल्थ को हम कैसे ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आज की गर्मी के लेवल्स के लिए हमें नहीं सोचना है, हमें जो बढ़ती गर्मी है उस हिसाब से सोचना है। सो जैसे बिल्ट फॉर्म के लिए हम लोग को वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्ट, राइट? आई मीन दिस थर्मल कंफर्ट। सिमिलरली फॉर आउटडोर वर्कर्स ऑल्सो, सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, बहुत सारे कंडीशंस हैं जो उस कंफर्ट लेवल को अफेक्ट करते हैं। शेड है कि नहीं है, पेड़ है कि नहीं है, पास में पानी है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, किस पार्ट उस वहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है कि आप ज़्यादा खुली जगह में वेंट कर रहे हो। तो आई थिंक ये भी हमारे पास एक टास्क हो गया है कि टू मेक सम सॉर्ट ऑफ पैरामीटर्स फॉर डिफरेंशियल impacts or experiences of heat for vendors or for other outdoor workers. And I know काफ़ी लोग जो हैं इस रूम में हैं जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं, सर्वे और इस तरीके की डेटा कलेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक मुद्दा भी जोड़ा जा सकता है कि क्या हम एक ज़्यादा नुआंस्ड फ्रेमवर्क बना सकते हैं जो हीट एक्सपीरियंस का ही ज़्यादा नुआंस फ्रेमवर्क हो। ये नहीं कि सिर्फ 48 डिग्री के ऊपर ये एक्शन किक इन कर जाएंगे और उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज हेल्थ इज अ कंटिन्यूअस काइंड ऑफ एन इफेक्ट। But before I give everybody a chance to sort of give a last response, I think हम खोल देते हैं कुछ ऑडियंस से क्वेश्चन और एंगेजमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हम वी आर ऑल फेमिलियर विद दीज इश्यूज।
वेंडिंग जोन्स की बात बहुत सालों से चल रही है और अब ये अर्जेंसी और ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें क्लाइमेट के भी इफेक्ट्स को डील करना पड़ेगा व्हेन वी थिंक अबाउट हाउ टू पुट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर अप. लेट्स पुट दैट ऑन द टेबल फर्स्ट. यहाँ पे कोई रेडिकल मांग नहीं हो रही है. स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स एक्ट में एम्बेडेड हैं. Infrastructure, public toilets, public water points, drinking water points, shade. These are rudimentary things. किसी भी tropical climate में shaded walkways होने चाहिए. ये urban designers को बहुत सालों से पता है और बहुत सारे tropical areas में already ये guidelines में embedded हैं. अगर आप हांगकांग, सिंगापुर कहीं भी जाएं, you will see shaded walkways are the norm rather than the exception. तो हम कोई radical demand नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम ये recognize कर रहे हैं कि climate adaptation अब एक बहुत पॉलिसी में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है. तो हम अपनी एग्जिस्टिंग डिमांड्स को इन नए मुद्दों के साथ कैसे डवटेल करके स्ट्रेटेजिकली इन मांगों को आगे रख सकते हैं. तो मुद्दा यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक मांगों का है, उन मांगों का नहीं है जो ऑलरेडी हम बहुत सालों से जानते हैं कि हमें चाहिए वो चीज़ें. सो लेट्स ओपन अप, मे बी टेक 2 or 3 क्वेश्चंस. आप अगर किसी पर्टिकुलर पैनलिस्ट को डायरेक्ट करें तो और अच्छा रहेगा. क्वेश्चंस प्लीज अपना नाम, ऑर्गेनाइजेशन या आप जहाँ पे काम करते हैं वो बताएं एंड इफ यू कैन डायरेक्ट द क्वेश्चन. As साहा मैम राइटली पॉइंटेड की प्लानिंग क्योंकि सिटी लेवल पे होता है तो ट्रांसपोर्ट की इंटरवेंशंस को, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को यूजुअली प्रायोरिटाइज किया जाता है. तो एक इशू ये है कि स्ट्रीट वेंडिंग की जो इंटरवेंशंस आते हैं उसकी जो अप्रोच, जो थिंकिंग आती है वो नेबरहुड लेवल और लोकल लेवल पर की तरफ ज़्यादा होती है. एंड तो क्या प्लानिंग एट मास्टर प्लान लेवल एक्चुअली इन इस नेबरहुड लोकल लेवल के प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और क्या उसके लिए हमें लोकल लेवल पे लोकल एरिया प्लान्स और ऐसी गाइडलाइंस बनाने चाहिए जो हीट को और स्ट्रीट वेंडर्स को कैटर करें. एंड सेकेंड इशू ये है कि ऑलरेडी हीट एक्शन प्लान ही मास्टर प्लान के साथ करंटली इंटीग्रेटेड नहीं है. देन स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट्स और पॉलिसीज़ भी मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है. तो हम उसके लिए एम तो करते हैं, बट क्योंकि इसमें एक स्केल का इशू है तो उस स्केल के इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है. थैंक यू. कैन यू पास द माइक टू Yeah, so my name is Nagaraj Natwe. I'm a member of informal group Teachers Against the Climate Crisis. So partly my comment also was जो भी scale की बात हुई, and maybe it's addressed to anybody here in the present panel or the previous panel who are part of government bodies, because I think somewhere the issue needs I think scale. और पार्टली बिकॉज क्या होता है कि द रिस्पॉन्स अक्सर जो मैं देखता हूँ या तो फ्रॉम द स्टेट और फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रॉम ऑल ऑफ अस इंक्लूडेड, आई थिंक इज वेरी मच लोकेटेड इन द प्रेजेंट. इन द सेंस ना वी आर बिहाइंड द कर्व, एंड वी आर बिहाइंड द कर्व बिकॉज इट्स एन एक्सेलरेटिंग प्रॉब्लम. इट हैज एक्सेलरेटेड इन द लास्ट, आई एम टॉकिंग ऑफ वार्मिंग एंड ऑल्सो मॉइस्चर, इन द लास्ट मे बी 5 years, 10 years or so, the rate of warming has accelerated. That to me, I've been following this now for roughly 20 years. It questions a lot of the assumptions that we had made, at least I made getting into the issue 20 years ago, and therefore, what kind of planning is required. So in that sense, one I think yes, definitely scale. Let's say first session में cool roofs की बात हुई. Yes, one can implement cool roofs at a local level and so on. But if we wanted to really affect at a city level, it needs scale. Then what is a city government or a state government doing to enable that kind of implementation? Say it requires subsidies so that लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, they will actually be able to apply cool roofs of not just cool roofs, but also good quality paint which will then last for a certain number of years. It requires certain kind of, only a state subsidy can effectively kind of provide. एक तो ये. दूसरा regarding scale, जो हाल में रिसेंटली आई थिंक ओनली राजस्थान में एक अर्बन NREG है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और वहाँ पे भी पता नहीं ढंग से इम्प्लीमेंट हो, जहाँ तक मैं सुना इट्स नॉट वेल adequately implemented. I would think that also is, in a sense, I'm saying that we are going beyond the specifics perhaps of what's been discussed, which is that in talking of scale, perhaps we need such an urban NREG in Delhi, in other places, across states, in different towns, ताकि
the solutions that can be implemented can address both climate change through better housing, urban energy, address issues of flooding, and thereby also address the other crisis, which is the jobs crisis. And thereby means ये जो informal workers की heat की बात हो रही है, such an important reports come out of it. You know, it's also not just कि daytime में क्या महसूस करते हैं, also कि रात को क्या महसूस करते हैं, because lot of the रात में also the temperatures have been going up, and therefore there is no period for the body to have any downtime because heat is, and therefore it involves कि हम लोग interventions workplace में भी करें और also जहाँ रहते हैं, and hence therefore requires. So point taken. So you're talking about a multiplex. Even everything has to be looked at from a larger scale rather than just a very larger scale, specific also approach. thinking ahead and thinking maybe a little out of the box. Sure. जैसे maybe we need, for instance, talking of shade. Maybe the state at scale can implement solar panels to provide shade. Now we talk of agrovoltaics. When you think of agrovoltaics in urban areas, provide solar panels across streets and therefore where vendors can then work below. So I'm saying we need to, in a sense, think at scale and perhaps And for the think out of future. box. Yeah. Okay. Anybody else? One more, please. Yeah, sir. We'll respond after this and then take another round. हेलो, हाँ जी, मैं सबको नमस्कार। मैं होकर जोन एक्शन कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, टाउन ब्रांडिंग कमेटी का मेंबर। मैं जैसे अभी सर जी ने बताया कि ये प्लांट जो चल रहा है बनाने का, और जैसे गर्मी के बारे में आप बता रहे हैं कि ये कैसे गर्मी खत्म हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 सेंटीमीटर जो फाइबर आता है थर्माकोल, वो उस चद्दर के नीचे होना चाहिए और उसके नीचे एक चद्दर भी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो उससे गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये मैंने दुबई के अंदर 2 साल मैंने ब्रांडिंग जोन किया है, तो वहाँ पे जब यहाँ पे 40 गर्मी होती है तो वहाँ 48 होती है। उस गर्मी के अंदर मैंने ब्रांडिंग जोन किया, तो इसी तरह की फाइबर हमने वहाँ पे लगवाई थी, तो उससे हमें काफी फर्क पड़ा था। अब मैं अभी जो कोई कंपनी जो आ रही है उससे यही सुझाव करूंगा कि इसी तरह के वो लगे, और जो बैक साइड में जो चद्दरें होती है उसमें भी थर्माकोल लगा। थैंक यू। हाँ, आपने आई थिंक कि वेंडिंग जोन की एक्चुअल मटीरियलिटी जो होनी चाहिए उसके ऊपर भी हमें शायद इसमें थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए, एटलीस्ट लैंग्वेज वो होनी चाहिए। शालिनी जी, आपको यू वांटेड टू इंटरव्यू? मेरा प्रश्न छोटा सा है, लेकिन समथिंग जिससे मैं बहुत ग्रैपल कर रही हूँ कि अब मैं पैनलिस्ट से और बाकी लोगों से भी ये चाहूँगी कि आप हमें डायरेक्शन दीजिए। ये एक प्रिंसिपल बन गया, आज हम फीडबैक भी दे रहे हैं, फिर हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं? क्योंकि ये कोई भी, हम लोग बहुत लोग साइलोस में काम करते हैं, हम लोग लेबर हैं, अर्बन हैं, क्लाइमेट हैं। अब ये कन्वर्जेंस को अपने लेवल पे, सरकार के लेवल पे छोड़ दीजिए, अपने लेवल पे हम कैसे लाएं? तो दैट्स वन क्वेश्चन कि वो उसके लिए शायद हमें कुछ कैंपेन करने की ज़रूरत है, कोलिशन मिलाने की ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा कि जो स्ट्रैटेजी हमारी गोइंग फॉरवर्ड होनी चाहिए, कुछ मुद्दे आए हैं कि हम थोड़ा नुआंस और करें, इम्पैक्ट को, डिफरेंशियल इम्पैक्ट को, वो भी। लेकिन हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस, डेफिसिट्स में कितना इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है, और हमारे पास पानी की सुविधा के लिए और शौच की सुविधा के लिए, महिलाओं की शौच की सुविधा, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, करोड़ों उनको वो होते हैं। तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, कि हम उधर के मुद्दों को भी टैप करें? कि अगर आपने कहा है कि फ्री वाटर मिलेगा सब हाउस होल्ड्स को, तो मार्केट्स की तरफ भी जाएं, और फिर अगर ये हम प्रपोज करना चाहते हैं तो वो उसको लेके कौन, who's going to run with it? Should it be the street vendor organizations who have to take on this new role? Should it be a group of, you know, and who should you be asking for? So what I'm trying to ask you is, माइक दे दें प्लीज। what I'm trying to ask you is, हम आगे कैसे बढ़ें? थोड़ा डायरेक्शन दीजिए।
मटीरियलिटी का मुद्दा आया है, क्रॉस सेक्टोरल स्ट्रैटेजीज इसका मुद्दा आया है, आपस में कैसे बात करें. बट आई एक्चुअली वांटेड टू कम बैक टू यू सर ऑन दिस बिफोर आई कम टू द पैनल. जैसे आप कौन रिस्पॉन्ड करेगा और कौन जिम्मेवारी लेगा वाली जो बात है, उसमें आई थिंक एक डिजास्टर फ्रेमवर्क में तो एक लाइन ऑफ कमांड और एक तरीका होता है. कैन वी थिंक ऑफ समथिंग लाइक हीट? I know right now we are looking at heat waves and some finite number of days as a heat wave response, but in a sense the extreme heat is like a prolonged version of that. So वहाँ पे कुछ grading हो सकती है क्या कि जब हम disaster heat wave notify करते हैं तब एक heightened response होता है क्योंकि death, I mean you're talking about death level sort of calamities, but then there can be gradations below that. And then can we take some clues from the DRR frameworks that exist and bring it into, some sort of a response mechanism? So just wanted to hear your thoughts, and of course आप questions भी pose कर सकते हो. I think I'm audible. That's okay. नहीं रिकॉर्ड हो जाएगा ना. First of all, it seems to be quite interesting subject, right? And it's also an emerging challenge for all of us. Looking at the heat perspective, we talk about climate change impact. First of all, the heat has already been considered as a hazard under mitigation, so there's a good opportunity for all of us to work in this domain. For NDMA, it's a learning process, right? We are looking into a very specific subject, concentrating on the informal worker and going down to the very specific category, especially the street vendor. There are a lot of examples as you have already highlighted in the document. Probably what I'll in terms of my understanding, and they're very specific particular subject, I think that's a local level agency, from our housing, Nuva has already mentioned, we need to be very much involved, local administrator, especially the municipal board and the town committees, right? Because we have to be worked out in a very specific action adaptations, local level. These are the areas we need a lot of, engagement, both at the government level, both at the, civil society network organizations, and locally led dialogue. The one aspect is very important. What I feel, what I understand, the capacity enhancement. My colleague from UNEP, so they have a lot of global expertise. She has already mentioned about the FEMO from the Australia. At NDMA, we are also taking, some of the best example across the globe, and also looking at the, local global practice. UNEP, no doubt, we have a knowledge partner. We are also looking at a long collaborative engagement because technically they have a lot of understanding in the subject of climate change adaptation. I think we need to be work out little more proactively at the local level, both in terms of the capacity enhancement, because unless and until concerned local administrations, when you talk about the heat action plan, whether it's the districts or below that, urban local bodies, this subject has to be understood by the technical persons or the implementations. So that's my understanding. And NDMA, we also look at collaborative framework. We already have a lot of partner institute and the knowledge institute like EMEC and the other civil society. We are always welcome. Let's have a collaborative dialogue. I'm looking forward to very specific agenda. Taking forward these specific street vendor zone and all. We need to have more dialogue on those lines. Thank you. Thank you so much, sir. Aarti, do you want to add to that in the sense that there's been a number of concerns on this? So if you could just... Just one more request to Aarti. When you talk about this climate change adaptation perspective, UNIF has done a tremendous work in Sinai, right? Can you give us some of the hints in terms of your initiative, what have done in Sinai, probably also looking at the informal sector, that will also give us an understanding, how to carry forward those agenda in terms of the other states or maybe in some of the pilot scale projects. Thank you so much for appreciating UNEP on this. Scale पे अगर if I can just scale के ऊपर yes that financing is needed, but it has to be अगर आपका तो planned financing होगा क्योंकि कभी ना कभी जैसे आज cool roof कितना है 330 रुपए per square feet पे आपको मिल रहा है, तो the financing has to come but state से आना चाहिए but in a limited time frame कि जब आपकी जो product है whether it is थर्मोकॉल या कूल रूफ है वो मार्केट मैच्योर पैरिटी आ जाए उसमें, तब तक के लिए तो वो देखना होगा मार्केट पैरिटी कब तक आएगी उस प्रोडक्ट की, तब तक के लिए फाइनेंसिंग ज़रूर चाहिए एंड इट हैज़ टू फ्लो फ्रॉम द स्टेट टू द सिटी लेवल, इफ आई आंसर दैट क्वेश्चन.
CSR फंडिंग एंड ऑल इज अ पॉसिबल ऑप्शन. आज खासकर बाकी उसमें हो रहा है स्कूल्स वगैरह में, बट अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर अभी तक फोकस गया नहीं है, बिकॉज हमें लगता है कि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना स्ट्रीट वेंडर के लिए. इट्स अ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर. सो वो एक है. ऑन द अर्बन प्लानिंग, नो डिसरिस्पेक्ट, बट मास्टर प्लान इज अ स्लो बर्निंग इंस्ट्रूमेंट. 15 years के बाद तो होता है, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं. सो डेफिनेटली मास्टर प्लान शुड स्टार्ट एड्रेसिंग इट. पर अगर दिल्ली का अगर आज हो जाता है जैसे मास्टर प्लान और उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं आता, तो अब हम 15 साल वेट तो नहीं कर सकते हैं. सो मुझे आई थिंक और यूनिपीसी उस पर अप्रोच काम करते हैं. जैसे चेन्नई में सर ने कहा कि हम मास्टर प्लान में लेकर आ रहे हैं. उनका मास्टर प्लान अभी अपडेट हो रहा है, तो हम उनके साथ नेचर बेस्ड सोल्यूशन, कितना आपका मिनिमम ग्रीन कवर होना चाहिए एक पब्लिक स्पेस में, एक नेबरहुड लेवल पे, एक कैंपस लेवल पे, आपका कैसे ग्राउंड कवर क्या होना चाहिए, वो सब हम लेकर आ रहे हैं. बट वहाँ के एक्सपीरियंस में मैं बता रही हूँ मास्टर प्लान्स वगैरह में डिले हो जाता है. सो इसके बीच में कुछ होना चाहिए जो सॉल्यूशंस आ चुके हैं. इज इट गवर्नमेंट सर्कुलर्स, इज इट अ पॉलिसी, अ डेडिकेटेड प्रोग्राम बाय द स्टेट और द नेशनल गवर्नमेंट, वो एक देखना होगा. इसमें आई थिंक अगर आप अपनी इस फ्रेमवर्क में उसको कहीं ना कहीं लेकर आए कि देयर इज नॉट वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेगुलेशन एंड पॉलिसी, मल्टीपल आने चाहिए, बिकॉज सबका अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एंड वी शुड नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ सोल्यूशन टू बी. कमिंग टू सर, चेन्नई में जो हम कर रहे हैं स्ट्रीट वेंडिंग का हम अभी शुरू करेंगे. अभी तक हमने लो इनकम कम्युनिटीज़ में हाउसिंग पे ज़्यादा फोकस किया है कि वो कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं सर्वेज करके, जिसको चेन्नई में कनकी नगर, वहाँ से हम देख रहे हैं उनका प्रेजेंट कैसा है, उनकी एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं. और अभी उनका एक मार्केट है, सॉरी मेरी तमिल थोड़ी जो है तो मैं मार्केट का ना, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट इन साउथ एशिया. नंबर सब कुछ ऐसा है, आई थिंक वही है. वहाँ पे वी आर ट्राइंग दीज सोल्यूशंस. वहाँ पे शेडिंग एक अच्छा उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है फॉर वेंडिंग, ऊपर शेड. आई डेफिनेटली शेयर फोटोग्राफ्स विद वेको, आपको अगर वो आगे सर्कुलेट करना है. अभी हम उसको देख रहे हैं उसको आगे कैसे करें और उसका फाइनेंसिंग कैसे होगा. इस केस में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने आगे स्टेप अप किया है. सो देखना होता है कौन सा डिपार्टमेंट है जो आगे आ सकता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज इन सर्टन केसेस ULB. एनवायरनमेंट के पास फंड्स होते हैं पेड़ लगाने के लिए, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास फंड होते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए. तो किसको आप कहाँ किस काम के लिए लेकर आ रहे हैं, वो हमने एक चेन्नई में एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है. किसी एक के साथ नहीं हो सकता है. एंड अर्बन प्लानिंग इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, बट एंड यस लिंक्ड विद हीट एक्शन प्लान. बट बीच में आप 10 साल 15 साल के लिए वेट नहीं कर सकते अगले मास्टर. Fantastic. Thank you so much, Tanya. Why don't you, any planning responses? Of course, we understand what she said is fine, but I think the local question, maybe if we can answer, is there in the spirit of interim of the master plan, is there something that can be done at local levels? We saw, and Jan Pahel and street vendors were very proactive during COVID. For example, creating social distance. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, सक्सेसफुल हुए थे क्योंकि लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा था. तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन किया गया था कि हम अपने आप से सरकार के साथ काम करके कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मार्केट्स में कर सकते हैं. तो वहाँ पे एक डिजास्टर फ्रेमवर्क के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर पाए थे कुछ. तो ये भी तो एक डिजास्टर है. तो इज देयर, आई मीन, some participative bottom up sort of approach that can come interim while the plans are, absorbing these ideas and coming up with solutions? So interim structure, I would say Chennai is doing a good work. Like I was in Chennai last 2 years. So the attention started from the city because they hit the wall somewhere and other cities didn't start. So regional planning approach also Chennai restarted. So I was engaged in the Coimbatore regional plan for GIZ support and all. But that awareness and consciousness, there was a work done on revamping the whole process of planning. Because the planning process also follows 1970s kind of structure. So that also needs a revamp. Master plan in Germany, I would say like they do a planning, there's a blueprint, but there's a dynamic recording of data, bottom up. That also gives them indication. So decision making is not stagnated for 10-15 years. And there is a tool of local area plan which is not much used. That is one.
who will use it? There are no institutions. So as Stopgap, if Chennai has identified like different NGOs or organizations to showcase how it can be worked, and then it gets internalized in the whole institutional structure in revamp process, that is needed as a stopgap. And subsidiarity of plans is also needed. Implementation and resources needed most at the local level, but that they don't have the resources. That's where the resources, be it human or fund, resides in the top level. They take the decision, but the granularity, they don't have the resources. So an interchange of all these things are needed to. Okay, so we have our sort of problem laid out for us, even better than we had when we started the session. सुषमा जी, अगर आप बोलना चाहें कि हम इस मुद्दे को का हल ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर हमको बताया जाए कि हम एक ही सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप कौन से सोल्यूशन का सुझाव देंगे? इसमें मैं सुझाव दूंगी कि वेंडिंग जोन होना चाहिए। सबसे पहले वेंडिंग जोन चाहिए हमें, क्योंकि हम आराम से कमा सकें, और उसमें सारे सोल्यूशन आ जाते हैं। जब वेंडिंग जोन बन जाता है, उसमें पीने का पानी भी, टॉयलेट भी, छत भी, हमें सब कुछ मिल जाएगा वेंडिंग जोन चाहिए। क्या बात, ये होती है क्लैरिटी। अरविंद, लास्ट वर्ड। नहीं, सुषमा जी ने बोल दिया तो कुछ एक्चुअली कुछ है नहीं, बस मैं एक सभी से यहाँ पे पॉइंट रख रहा हूँ जो शालिनी जी यहाँ पे बात रख रही थी कि आपने जैसे कि बोला कि पर स्क्वायर फीट कितना रेट है कूल रूफ? 330 स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमने मतलब आपने 3-4 जगह ट्राई किया होगा, देन आप उस फिगर और अमाउंट तक पहुंच पाए। चेन्नई के केस में मैं कह रहा था कि क्या यहाँ पर ऐसे साथी हैं, नेट स्ट्रीट वेंडर साथी, तो आई थिंक रेडी ही होंगे इस चीज़ को आगे लेके जाने में। सॉरी, माय मिस्टेक, 330 रुपीस पर स्क्वायर मीटर। नॉट फीलिंग वेल टुडे। पर स्क्वायर मीटर, 30 रुपए पर स्क्वायर फीट। सॉरी, तो विच इज़ वेरी डूएबल, है ना? क्योंकि अभी भी स्ट्रीट वेंडर तारपुलिन लगाते हैं जिसको हर, है ना, वो क्या 600 रुपये, 800 रुपये, 700 रुपये, 1000, उस पर भी कभी कभी हरासमेंट वाला केस हो जाता है, उसको फाड़ दिया जाता है, जो एक्चुअली रिपोर्ट में बहुत होता है, हमेशा होता है। हमेशा होता है। मैं तो बस थोड़ा उसको वो कर रहा था, हमेशा होता है, पैलेटेबल बना रहे, हाँ, उसको थोड़ा वो करने की कोशिश कर रहा था। पर वो अगर हो रहा है तो हम 30 रुपये स्क्वायर फीट वाले सोल्यूशंस को, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर ही साथी हैं जो स्ट्रीट वेंडर यूनियंस के हैं, यहाँ पर ही साथी हैं जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो क्या पायलट, जैसा भी उसका वर्ड हो, पायलट ही अब उसको उस वर्ड को ही यूज़ करते हुए, क्या हम कोशिश करें इस समर में, अभी टाइम है, तो ऐसे छोटे एफर्ट्स के ऊपर अगर हम काम कर पाएँ और फिर रीच आउट कर पाएँ कि देखिए स्केलिंग पॉसिबल है, TVCs अधिकांश शहरों में एक्टिव हैं या काम कर रहे हैं या एटलीस्ट हैं, मौजूद हैं, फंडिंग की कोई कमी नहीं है। मैं बस साइड में ये देख रहा था कि PM स्वनिधि जो स्कीम है, उसका पिछले 7-8 साल में आउटले देखें तो 7,000-8,000 करोड़ उसका बजट है। तो इसमें तो एक्चुअली पैसे की भी इशू नहीं है, अगर हम ये दिखा पाएँ कि ये पॉसिबल, ये हो रहा है, इसका अपटेक हो जाएगा। मैं बस यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, कई साथी अगर आगे आएँ, छोटे एफर्ट्स लें, आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा और कोलैबोरेटिवली हम दिखा पाएँ कि देखिए पॉसिबल है, हम क्यों नहीं कर रहे। पैसे की कमी अगर नहीं है, इशू है, तो उसको हम एग्जीक्यूट करें, वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आई मीन जस्ट टू रैप इट अप, आई थिंक एक अर्बन लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हम एक्चुअली पब्लिक स्पेस के मुद्दे की बात कर रहे हैं, अगर हम उस तरीके से देखें तो पब्लिक स्पेस पे किसका क्लेम है? मोबिलिटी का क्लेम है, मतलब वी नीडेड टू वॉक, वी नीडेड फॉर पीपल टू रेस्ट, वी नीडेड फॉर मेनी थिंग्स। और आई थिंक इंडियन सिटीज़ में पायलट के तौर पे मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स, वॉकिंग प्रोजेक्ट्स, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स, नेचर बेस्ड सोल्यूशन प्रोजेक्ट्स, ये ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं कई जगह, जहाँ पे मुद्दा वही है कि आपने पब्लिक स्पेस पे क्लेम करना है और पब्लिक अथॉरिटी के साथ मिलके कोई इनोवेटिव सोल्यूशन आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। आई थिंक स्ट्रीट वेंडर एज अ ग्रुप वो क्लेम अभी तक कर नहीं पाया है। वो अपने आप को एक एज अ necessary part of the city, as a group that is not contradicting somebody else's freedoms or mobilities, ये जो मुद्दा बना हुआ है एक पब्लिक के अथॉरिटी के दिमाग में कि स्ट्रीट वेंडर एक न्यूसेंस वैल्यू है, वी आर कॉम्बैटिंग दैट बिकॉज आई थिंक डूइंग अ पायलट इज नॉट अ प्रॉब्लम। देयर आर मेनी लोकल बॉडीज who are willing to come on table for a pilot if the funding is coming
from a CSR or another source. As urban planners हम कई सारे ऐसे projects देखते हैं, लेकिन vending zone के संदर्भ में ये करना थोड़ा सा एक mindset issue हो जाता है. So just to sort of take सुषमा जी's clarity कि जब तक हमारे पास लीगलाइज्ड या एक हक वाली जगह नहीं होगी, तब तक हम सस्ते से सस्ते इफेक्टिव सोल्यूशन भी ट्राई नहीं कर पाएंगे, और जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हम उसके बेनिफिट्स डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, डेटा जनरेट नहीं कर पाएंगे. तो ये हमारे चैलेंज है, रोडब्लॉक है. वी हैव टू फाइंड पार्टनर्स हु आर विलिंग टू टेक दैट फर्स्ट रिस्क. सो एवरीबडी इन द रूम, whoever you work with, keep your eyes and ears open. हम कहाँ पे एक पार्टनर, एक लोकल बॉडी, एक अथॉरिटी ढूंढ सकते हैं जो इस मुद्दे पे काम करने के लिए रेडी हो, फिर हम बाकी सबको उस मुद्दे पे खींच सकते हैं. सो ऑन दैट slightly more positive note, hopeful note, let's end the session and let's reconvene after lunch. Thank you very much, Jan Pahel and Vigo, for getting us all together.